a very warm welcome to my channel. I'll be posting weekly and daily Nifty and Bank Nifty analysis videos here on my channel. So make sure you subscribe and like the videos. I hope you'll get benefit from this. Also, I'm not saying कि मैं बहुत बड़ा trader हूँ या बहुत pro हूँ. We'll learn together, we'll grow together. Okay. So let's start the Nifty daily time frame analysis. Okay. So what happened in Nifty was कि यहाँ पे 17,200 पे अच्छा खासा accumulation हुआ, distribution हुआ, accumulation तो नहीं, distribution हुआ, and yesterday when Nifty broke 17,200 it was a clear short and it gave a good fall to us. ठीक है. And also if you can see this channel, let me show you on 15 minutes time frame. निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था. ठीक है, यहाँ से अगेन एंड अगेन सपोर्ट लेता हुआ. उसके बाद क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, निफ्टी फेल एंड देन इट अगेन रीटेस्टेड और उसके बाद अगेन. सो नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो. ओके, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो इज ऑब्वियसली वी आर इन द बियरिश जोन राइट नाउ. ठीक है, और एक अच्छा खासा डिप और मिल सकता है. If we open flat or slightly negative, clear short है. ठीक है, if we broke today's low, I mean yesterday's low, अगर हम तोड़ते हैं तो clear cut short है और we can expect fall up to these levels 16,800 easily, 780 782. ठीक है, यहाँ तक तो हमको आराम से fall मिल सकता है. Also the data shows it clearly कि morning sell off होगा because retailers are bullish. I'll also upload a video about analyzing the data. तो ये तो क्लियर कट शॉर्ट है, बट हाँ बी कॉशियस है बिकॉज ये बहुत अच्छा सपोर्ट बना था 16,782. इफ मतलब देखा जाए तो 16,782 के बाद एक अच्छी खासी रैली आई थी. राइट, मतलब एक क्लियर कट रैली थी 16,800 पे. सो ये एक अच्छा सपोर्ट है. इफ़ यू आर शॉर्ट इन द मार्केट यू कैन बुक योर शॉर्ट्स हियर. And if we close below this, okay, if we close below this, then there is a gap. Okay, I will show you here. You see, मैंने जो लाइन बनाई है हॉरिजॉन्टल, यहाँ तक अगर ये ब्रोक होता है, ये गैप सपोर्ट लिया था पिछली बार भी हमने. ठीक है, ये जो गैप का रीज़न था, ये यहाँ से सपोर्ट लिया था. उसके बाद ही एक अच्छी रैली आई थी, फिर वापस हम वहीं उस लोअर एंड पे हैं. तो अगर ये गैप फिल होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज 16,723, 716. ये भी एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है बिकॉज दिस गैप विल बी फिल्ड. ऑलराइट, सो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है. फर्दर एक जंप, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दीज जंप्स बिकॉज दे विल बी डेड कैट जंप और मार्केट को इवेंचुअली नीचे ही लेके आएंगे बिकॉज FIIs आर सेलिंग ह्यूजली. ऑलराइट, and they are not selling, without disturbing the price. They are selling like basket orders लगा के sell कर रहे हैं बिना रुके. Okay, and yep, it's very dangerous also because for markets, मतलब yesterday everything was normal. Okay, SGX was showing flat opening, global markets were doing good, there was no negative news as per. Right, but still we fell because FIIs are selling hugely. DIIs बाई कर रहे हैं बट वो इतना ज़्यादा बाई नहीं कर पा रहे और इंडेक्स हैवी वेट सेलिंग है. FIIs की जो सेलिंग है दैट इज़ इंडेक्स हैवी वेट सेलिंग. दैट्स वाई इंडेक्स पे इतना ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है. बट दीज डिप्स आई विल से फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दीज डिप्स आर very good and you should accumulate good blue chip stocks in this fall. Okay, now coming to Bank Nifty. You see Bank Nifty gave a good fall. Okay, Bank Nifty अच्छा खासा fall दिया है. Also we are nearing the support. और Bank Nifty जितना निफ्टी पहले गिरा था Bank Nifty उतना नहीं गिरा था. Bank Nifty was very strong. So Bank Nifty को इन्होंने अब पीटा है. You see HDFC Twins, they are selling hugely in those stocks जो index heavy weight है. And do let me know in comment section what do you feel about this FII selling. Is this normal or
I don't know. Okay, so again a small support can be expected here. यहाँ से एक हल्का सा बाउंस आएगा, बट आई एम नॉट श्योर कि ये इतना ज़्यादा टिकेगा सपोर्ट, बिकॉज इट्स वीक नाउ, इट्स वीक. ओके, सो दैट्स ऑल. बैंक निफ्टी, that's all guys. View is bearish, and but around this region, around 600 16,800, you should be cautious with your shorts, because this is a good support and we can expect some bounce from here also. अगर कल एक गैप अप मिलता है, सी, एक गैप अप मिलता है और एक हल्का सा बाउंस मिलता है, ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी. जो कल का हाई होगा, इसी कल का हाई तो ये आ रहा है, बट एक जो स्विंग हाई ये लगा था, ठीक है, अगर स्विंग हाई तक हमें मिलता है 17,118 या 14 के आसपास, इट विल बी अगेन अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी हेयर एंड अगेन वी कैन फॉल. ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन चेन. ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि इतनी बड़ी फॉल या इतने ज़्यादा कंटिन्यूस फॉल जो आ रही है, पैनिक सिचुएशन जो है, वो क्यों आ रही है. डेटा शोज इज क्लियरली, बिकॉज डेटा ही है जो बोलता है, ठीक है. एंड जो FII और DII और जो डेरिवेटिव डेटा है, we'll analyze that, okay, in the next video. So make sure to subscribe. Also you can see here huge call writing. okay, 17,000 पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग है. इनफैक्ट 17,000 पे पुट राइटिंग भी अच्छी है, इसी. बट देखना ये पड़ेगा कि ये पुट राइटिंग किसने करी है और एक कॉल राइटिंग किसने करी है. अगर कॉल राइटिंग स्मार्ट मनी ने करी है, दैट मीन्स वी विल फेस हैवी रेजिस्टेंस ओवर 17,000. ऑलराइट, अगर ये पुट राइटिंग रिटेलर्स ने करी है तो ये सपोर्ट नहीं है. अच्छा, ठीक है. यू सी हियर, देख, you can see there heavy put writing was removed. These put writers were made to run for cover, because ऐसी पैनिक फॉल में भी अगर कोई पुट राइटिंग करेगा, नेकेड पुट राइटिंग, तो गॉड नोज उसके ट्रेडिंग अकाउंट का क्या होगा. That's all guys. Make sure to subscribe and like. Also share with your friends, and I'll be uploading soon the derivative data analysis video. Bye bye, take care.